Okay, so welcome Abu Zar, Harim, and Tahreem, and the physical students as well. So we left in the last class, if you remember, the topic which we started last time was the internet connections. और इसमें हमने बात ये की थी कि असल में इंटरनेट है क्या. तो हमने कहा जी इंटरनेट ये है कि यू हैव डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स, connect them together to become an internet. So we have millions of local area networks, and we are connecting them together. अब अगर हमारे पास लेट करें, दिस इज द लैन नंबर 1, दिस इज लेट इट बी द यूईटी नेटवर्क, लेट इट बी द पिशावर यूनिवर्सिटी नेटवर्क, let it be it is the agriculture university network, let it be it is the KMU network, and so on. So all of these networks need to be interconnected with one another, and for this we need the service providers. We have multiple service providers available to us, like PTCL in Pakistan, like Nayatel, like Stormfiber, and maybe the wireless, some of the wireless Wateen, NTC, for example, and some wireless operators as well. So there need to be some network between this LAN and the service provider, and that network is called, as you remember, access network, or you may also call it the last mile. ठीक. सो यहां पे इस एक्सेस नेटवर्क में मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं. इट मे बी दैट दिस लैन जो मैंने लिखा, दैट कैन बी अ लैन और इट कैन बी अ बिग नेटवर्क. Like for example, we have an enterprise network of UET, or we have an enterprise network of some big organization. So that is an enterprise network. So it can be a small office or a home, or a small office, home office, or it can be an enterprise. So we have two categories. One, may I call it as small users, and number two is the enterprise users. Enterprise users. Is it clear, Abu Zar? क्लियर है ना? दो में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. अब नंबर 1 पे हमने कहा कि जी पुराना एक सिस्टम स्मॉल यूजर के लिए था कि दे वर यूजिंग द मॉडेम, एंड एट दैट टाइम although एट दैट टाइम कह रहा हूं, लेकिन ऐसे लगता है कुछ सदी पुरानी बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पे सदी नहीं हुआ. दैट इज रफली 2000 के आसपास वी वर यूजिंग द मॉडेम, and the latest modem at that time was giving 56 kilobit per second only. Then came the ADSL, जो मैंने आपको साथ लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था. Then came the ADSL के साथ साथ there was the cable network. Then was the passive optical network, PON, passive optical network. Then is the active optical networks, जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं. And then is the maybe the mobile data networks, mobile data networks. So these networks can be used by small to medium organizations to provide connectivity to the ISP. जबकि large organizations जो थी, they were, instead of the ADSL, they may be using SDSL, they may be using the lease line, they may also be using the satellite. So these are the technologies which are used by small users and enterprises to connect to the service providers, and to the service provider, which means they are connected to the internet. बात समझ आ गई? अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन दो टेक्नोलॉजीज के लिए हमारा जो टेलीफोन ऑपरेटर था, दैट वाज इनफ. टेलीफोन ऑपरेटर विद माइनर चेंजेस ओनली was enough. क्या बताया था?
अगर आपको याद हो तो हमने बात ये की थी कि एक तरफ हमारा यूजर, यू फॉर यूजर, इस यूजर ने इनिशियली क्या किया, क्योंकि हमें पता है कि यूजर के घर में जो फोन लाइन थी दैट वाज फॉर द एनालॉग वॉइस, and that analog voice of arc is going towards the central office, which means telephone office. लेकिन जब हमने यहाँ पे अपना कंप्यूटर लगा दिया तो फिर इट वॉज डिजिटल। तो हमने सिर्फ क्या किया, इस कंप्यूटर के बाद एक अदद मॉडेम यहाँ पे ऐड कर लिया, जिसका काम यह था कि डिजिटल ले एनालॉग में कन्वर्ट करे और टेलीफोन एक्सचेंज को, ताकि टेलीफोन एक्सचेंज को पता ही ना चले कि यहां से वॉइस आ रही है, एनालॉग वॉइस आ रही है, या कंप्यूटर का डिजिटल डेटा आ रहा है, क्योंकि दो मुख्तलिफ चीजों को एक ही कनेक्शन नहीं संभाल सकता। ठीक है, तो इसके लिए ओके, तो इसके लिए जरूरी था कि हम इसको एनालॉग में कन्वर्ट कर लें, और जब एक्सचेंज से डेटा आए तो वो भी एनालॉग में आए। तो पे एक्सचेंज तो एनालॉग भेजेगी, हम उसको दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करके अपने कंप्यूटर को दे देंगे। तो दैट वाज समथिंग वेरी ओल्ड का मतलब है इट वाज बीइंग यूज्ड अराउंड इन 90s एंड अर्ली 2000। ठीक, तो इन टाइम में लोग इंटरनेट के जरिए को इस मॉडेम के जरिए 56K के मॉडेम के जरिए कनेक्टिविटी हासिल करते थे। तो बस लैन के एंड के ऊपर आपने एक अदद मॉडेम लगाया और पीछे आपने कंप्यूटर रख लिया। अब इसके बाद आया कि नहीं जी, ये तो 56K जो कि रियलिटी में आपको 10K से भी कम देता था, लेकिन आजकल आप देखते हैं कि जब आप कोई भी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग कर रहे होते हैं डेट इज इन मेगा, और किलो और मेगा के दरमियान में 1000 टाइम का डिफरेंस है। कितना टाइम का डिफरेंस है? ऐसे ही है ना, किलो और मेगा के दरमियान में 1000 टाइम का डिफरेंस है। तो इससे मतलब है कि हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, इसलिए ये मॉडेम की टेक्नोलॉजी खत्म हो गई। फिर क्या हुआ, मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज एक्सप्लेन की थी कि देन वी यूज दी ADSL। और वजह क्या थी इसकी, क्योंकि आपने देखा अभी इस केस में भी हमारे ऑपरेटर को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी, उनका वही नेटवर्क था, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। यहां पर भी यही हुआ कि यूजर ने अब मॉडेम की बजाय उन्होंने ADSL रूटर यहां पे इंप्लीमेंट कर दिया। देखा है आपने ADSL रूटर? लास्ट क्लास में दिखाया था कि ADSL रूटर लगा दिया, और जो पुराना हमारा सिस्टम था मॉडेम का, उसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज, एक तो स्पीड कम थी, दूसरी उसकी खराबी ये थी, कमी ये थी कि जब हेलो चल रहा होता था तो नेट नहीं होता था, और जब नेट होता था, इंटरनेट होता था, तो हेलो खत्म हो जाता था। तो कोई एक ने काम करना होता था, तो यूजर इससे बड़ा तंग होता था, क्योंकि स्पेशली इंटरनेट तो घंटों का काम है भी स्लो। एक ईमेल भी करनी है तो आधा घंटा लग जाता था, और अगर कोई बड़ी फाइल साथ अटैच्ड है तो उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता था। तो कहने का मकसद ये हुआ कि यहां पे मसला ये आता था कि जब इंटरनेट लग गया तो जितनी हेलो की जरूरत होती थी, सॉरी, फोन लाइन इज बिजी। तो ADSL ने ये किया कि उसने मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक सामने ले आई। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लेक्सिंग एक्सप्लेन किया था। तो मल्टीप्लेक्सिंग में यू एड द टू, यू टेक वॉइस, you take the green voice and you take the red data and you multiplex them using FDM, frequency division multiplexing. So below 1 megahertz you take your voice
and above 1 megahertz you place your data by using FDM, by using FDM. कुछ बात समझ आ रही? Yes. ओके नाइस. अब ये दोनों चीजें कंबाइंड आपका ये मॉडेम इनको मल्टीप्लेक्स करके, इसलिए आपने देखा होगा कि जिनके लोगों के घरों में अब भी ADSL है उनके घर पे एक अदद स्प्लिटर होता है जिसको एक इनपुट और दो आउटपुट होते हैं. Yes. तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्स डेटा आता है जो कि एक हिस्सा उसका फोन की तरफ चला जाता है और दूसरा आपके डेटा की तरफ, चाहे कंप्यूटर लगा लो चाहे कोई स्विच लगा लो. ठीक है. आजकल ये जो इसके आगे आप यहाँ पे अपना मॉडेम लगा लेते थे. ठीक है. और दो डेटा आपके इकट्ठे करके इसकी तरफ एक्सचेंज की तरफ भेज देते थे. और एक्सचेंज की साइड पे क्या लगा होता था? DSLAM, DSLAM. DSL इज द डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे आप एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रही. So and here what is DSLAM is the digital subscriber line access multiplexer. तो बेसिकली ये मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम करता है. तो जब इसके पास वॉइस का पार्ट है वो ये अपने सर्किट स्विच को हवाले कर देता है और जो इसका डेटा पार्ट है वो ISP के हवाले कर देता है. तो यूं आपका वॉइस भी आ रहा होता है और आपका डेटा भी आप ये उसको मल्टीप्लेक्स करके आपकी तरफ फेंक देता है. आप उसको अलग करके वॉइस को अपने फोन पे सुन लेते हो और डेटा को अपने कंप्यूटर पे देख लेते हो. कुछ बात समझ आ रही? Yes. सो दैट इज व्हाई ADSL वाज यूज्ड. लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था कि इसको A क्यों कहते हैं. A क्यों कहते हैं? तो अगर हमारी सीनियर जो है वो हरीम है तो ADSL को हम क्या मतलब है हरीम? देर में मैं रब कर रहा हूं, आप बता दें. हमने लास्ट क्लास में, अगर आपने वीडियो सुनी है तो हमने इस पे बात की थी कि A का मतलब है एसिमेट्रिक. A का मतलब है एसिमेट्रिक. गुड. A का मतलब है एसिमेट्रिक. और एसिमेट्रिक का मतलब है कि आपका अपलोड और डाउनलोड बराबर नहीं है. आपका अपलोड कम है और आपका डाउनलोड उसके मुकाबले में ज्यादा है. जी. आपकी डाउनलोडिंग स्पीड मोर. और वो भी क्यों? यस. अपलोड स्पीड लेस. यस, दैट आई हैव रिटन हियर दैट योर अपलोड इज लेस and your download is more as compared to the upload. और वो भी क्यों? अंडरस्टैंडेबल था कि हमारा आम यूजर आज भी ज्यादातर डाउनलोडिंग करता है. कभी फेसबुक से डाउनलोडिंग कर रहा है, कभी यूट्यूब से डाउनलोडिंग कर रहा है, कभी इंस्टा से कर रहा है, एक्स से कर रहा है, ट्विटर से कर रहा है. यानी ज्यादातर वो डाउनलोडिंग पे लगा होता है. बहुत कम होता है कि वो कोई ईमेल भेजता है. तो अपलोडिंग कम, डाउनलोडिंग ज्यादा थी, इसलिए अपलोडिंग के लिए कम चैनल की बैंडविड्थ इस्तेमाल की गई और डाउनलोडिंग के लिए ज्यादा. तो इट वाज नाइस फॉर एन ऑर्डिनरी यूजर. लेकिन स्पेशली जब ये कोविड का टाइम आया तो यूजर्स की डिमांड ट्रेंड बदल गया. मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो जो ही कोविड हुआ हमें कहा गया कि घर बैठ जाओ, लेकिन ये कहा गया स्टूडेंट को पढ़ाना भी है. पढ़ाने के लिए हमें ये कहा गया कि जनाब आप इनकी तरफ जो भी क्लास लो उसको रिकॉर्ड करो. और रिकॉर्ड करके मे बी 200 मेगाबाइट की या 300 मेगाबाइट की फाइल बन जाती थी. और अगर दिन में 2-3 लेक्चर्स हैं तो इसका मतलब तकरीबन 600 के अप्रोक्सीमेटली मेगाबाइट्स हम हर रोज जनरेट कर रहे थे और फिर हम उसको क्लाउड के ऊपर अपलोड करते थे. तो इसका मतलब ये हुआ
और जब हम 600 को क्लाउड पे अपलोड करते थे तो आप 600 को, स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, वो 600 डाउनलोड कर रहे होते थे। तो यूं हमारे लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो गई कि हम अपलोड भी ज्यादा कर सकें और हम डाउनलोड भी ज्यादा कर सकें। इसलिए ये मेथड एडीएसएल बैठ गया। अब इतना ज्यादा लोगों के पास एडीएसएल नहीं। एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद था इस इंटरनेट कनेक्शन के लिए, एंड दैट वाज कि क्यों ना हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस टेलीफोन ऑपरेटर, व्हाई नॉट वी शुड बी यूजिंग द केबल ऑपरेटर। क्योंकि केबल ऑपरेटर भी तो हमारे घर में पहुंचा हुआ है। अगर वो हमें टीवी दे सकता है, टीवी हमें डाउनलोड करवा सकता है, तो क्या हमें वो इंटरनेट डाउनलोड नहीं करवा सकता? करवा सकता है। आज तो पाकिस्तान में केबल ऑपरेटर मोस्टली ये काम नहीं करता, लेकिन ये इंस्टेड ऑफ, क्योंकि हमारा जो टेलीफोन का ऑपरेटर है वो तो हमारे पास कॉपर के जरिए और ट्विस्टेड पेयर कॉपर के जरिए कनेक्टेड है, हमें दे रहा है। लेकिन हमारा केबल ऑपरेटर तो हमें कोएक्सियल पे दे रहा है, जो कि उससे ज्यादा बैंडविड्थ रखती है। कोएक्सियल ज्यादा बैंडविड्थ रखती है, तो वो तो हमें बेहतर बैंडविड्थ प्रोवाइड कर सकता है, बेहतर स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली हमारा केबल ऑपरेटर समझता है कि उसका काम सिर्फ, आल्दो कि ये सिर्फ आपको टीवी और डेटा नहीं, बल्कि ये आपको वॉइस भी दे सकता है। जी बिल्कुल। कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ तकरीबन 100 मेगाबिट पर सेकेंड तक हो सकती है। तो एज कंपेयर, जो कि नॉर्मल ट्विस्टेड पेयर केबल इससे बहुत कम देती है। यही वजह थी कि वो हाई 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 बैंडविड्थ या हाई स्पीड नहीं प्रोवाइड कर सकता था एडीएसएल, इसलिए वो खत्म हुआ। समझ आ रही है? ओके। तो इस वजह से केबल ऑपरेटर्स को भी हमने खैर बात कहा या नहीं इस्तेमाल किया। और आजकल मेजॉरिटी घरों में ये पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, यानी कि अभी तक तो इसका मतलब यह है कि हमने ऑप्टिकल फाइबर को आपके घर तक पहुंचा दिया। हमने ऑप्टिकल फाइबर को आपके घर तक पहुंचा दिया। और क्योंकि आपको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरीज द सिग्नल विच इज ऑप्टिकल, and optical fiber can carry or can provide high bandwidth, high data rate, high data rate. That's the reason. अब आप अगर पॉन को कहें कि मुझे 10 मेगाबिट पर सेकंड चाहिए, 20 मेगाबिट पर सेकंड चाहिए, 100 मेगाबिट पर सेकंड चाहिए, 1 गीग चाहिए, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे होता क्या है कि आपके, होता क्या है, और इसको फिर पैसिव ऑप्टिकल क्यों कहा गया, ये भी आपके लिए समझना बेहतर है और जरूरी है। Okay, Terry has asked the question कि जी, if coaxial has a high bandwidth, so why it failed, या why not being used? तो इसका जवाब हम लेते हैं, लेकिन 1 मिनट के बाद। पानी में ले लूं एंड देन वी कंटिन्यू जल्दी से। इतनी देर में मैं इसको ठीक साफ भी कर देता हूं ताकि, तो तहरीम आपकी बाकी फ्रेंड्स किधर हैं? टूर पे गई हुई हैं या वो भी घरों को चली गई हुई? ओके। तो आपने टूर पे जाना पसंद नहीं किया या लाहौर अच्छा नहीं लगता?
पानी पीने के बाद आई रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन एंड देन एक्सप्लेन व्हाट इज पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। ओके जी, तो पहले सवाल का जवाब देंगे तहरीम का। तहरीम का क्वेश्चन ये है, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है कि अगर कोएक्सियल की स्पीड बेहतर है तो व्हाई वी लेफ्ट इट। द आंसर इज कि जो कोएक्सियल केबल है, कोएक्स है, जैसे मैंने बताया कि डैट कैन प्रोवाइड यू, ज्यादा तो मैंने कहा, लेकिन ज्यादा का क्या मतलब है तहरीम? इसका मतलब है ज्यादा फ्रॉम दी ऑर्डिनरी ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबल, इससे ज्यादा। ऑर्डिनरी या कैट 3 कह दूं, अभी क्लियर करूंगा कैट 3 क्या है, कैट 4 क्या है, कैट 5 क्या है, 6 क्या है। तो जो टेलीफोन ऑपरेटर इस्तेमाल करता है डेट इज ए कैटेगरी 3 ट्विस्टेड पेयर कॉपर। तो इसके मुकाबले में कोएक्सियल के पास ज्यादा बैंडविड्थ है, लेकिन कोएक्सियल के पास ऑप्टिकल फाइबर से तो कम है। ऑप्टिकल फाइबर तो कैन गिव यू गीगास एंड टेरास, कोएक्सियल केबल तो आपको नहीं दे सकती गीगा और टेरास। इसलिए तहरीम वी वेंट फॉर दी ऑप्टिकल फाइबर। तो पहले तो ऑप्टिकल फाइबर जो है, हम इसको फर्दर भी पढ़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ कोर में इस्तेमाल होता था, यानी शहरों के दरमियान, मिसाल के तौर पे मुल्कों के दरमियान फॉर एग्जांपल, समंदर के अंदर फॉर एग्जांपल, दरियाओं के नीचे फॉर एग्जांपल ये इस्तेमाल होता था। या एक ही बड़ा शहर है जैसे पेशावर है, कराची है, लाहौर है, तो उनके दरमियान जो मुख्तलिफ बड़े ऑफिस हैं, टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं, मिसाल के तौर पे आईएसपीज हैं, उनको आपस में मिलाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल होता था। लेकिन अब तो मैंने कहा आपके घर तक भी फाइबर पहुंच गया है। अब तो आपके घर में, जिन लोगों के घर में पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क चल रहा है या गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क चल रहा है, जीपॉन चल लगा हुआ है, उनका आपके घर तक भी अगर आप गौर करें तो ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका हुआ है। क्या आपके सवाल का जवाब तहरीम मैंने दे दिया? ओके, गुड। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको पैसिव ऑप्टिकल क्यों कहते हैं? जैसे एसिमेट्रिक का हमने जवाब दिया, तो लाजमी तौर पे हमें पैसिव का भी जवाब देना होगा। और अगर तहरीम नहीं, हरीम हरीम देना चाहे तो बिल्कुल हम उसका जवाब सुनना पसंद करेंगे कि इसको पैसिव क्यों कहते हैं। अदरवाइज अबूजर भी जवाब दे सकता है। शाबाश। तो इसको आपको, स्पेशली जो इंजीनियर्स लोग हैं, उनको पता है कि डिवाइसेस दो किस्म के होते हैं, एक्टिव डिवाइसेस एंड पैसिव डिवाइसेस। एक्टिव डिवाइसेस उनको कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनको पावर की जरूरत होती है टू टू फंक्शन। ऐसे डिवाइसेस जिनको पावर की जरूरत हो टू फंक्शन, हम कहते हैं ये एक्टिव डिवाइसेस। मिसाल के तौर पे आपके अच्छी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि अभी फ्राइडे आने वाला है, और फ्राइडे के दिन इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस, एंड चैट में भी कुछ लिखा हुआ है। पैसिव तहरीम कह रही है नॉट डायरेक्टली यूज में भी, तो अभी जवाब देता हूं, फिर देखते हैं कि जवाब ठीक है या गलत है। तो तहरीम, हाँ एक्टिव उसे कहते हैं, मिसाल के में ये है, क्योंकि आजकल आप जुमे की नमाज के लिए हमारी फीमेल स्टूडेंट्स भी जो हैं वो मस्जिद जाती हैं, तो वो मौलाना साहब जो हैं, जिनका नाम है, क्यों मौलाना साहब, चलो जो भी है नाम, अजीजुल्लाह साहब, अजीजुल्लाह साहब बैठे होते हैं बेसमेंट में, लेकिन उनकी आवाज फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे भी पहुंच रही होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे उन्होंने इस्तेमाल किया होता है एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर को पावर की, वापडा की जरूरत होती है। इसका मतलब कि एम्पलीफायर कौन सा डिवाइस हो गया? एक्टिव डिवाइस हो गया। जबकि पैसिव डिवाइस उसको कहती हैं कि वो डिवाइस जो कि पावर की उसको जरूरत ना हो और वो फंक्शन करे।
तो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव डिवाइस। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में कोएक्सियल केबल या केबल ऑपरेटर से आपने केबल टीवी लिया हुआ है, तो आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर से एक अदद कोएक्सियल केबल गुजर रही होती है। आप इस केबल को काट के दो हिस्से कर देते हैं, दरमियान में आप एक टी टाइप कनेक्टर लगा देते हैं, यू, और यहां अपनी केबल लगाकर अपने घर में ले आते हैं। कभी गौर किए? तो इसका मतलब है कि ये जो टी टाइप कनेक्टर है ये क्या है, पैसिव है, क्योंकि इसको किसी पावर की जरूरत नहीं होती। इवन घर पे भी आप ये कर लेते हैं, अगर आपके घर में एक से ज्यादा टीवी है तो आप क्या करते हो, आप एक टी कनेक्टर लाते हो और अपनी कोएक्सियल केबल को काट के एक टीवी इधर लगा लेते हो, दूसरा टीवी इधर लगा देते हो, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये कनेक्टर क्या हुआ, पैसिव। तो जिसको फंक्शन करने के लिए, जिसको फंक्शन करने के लिए पावर की जरूरत ना हो, तो उसको हम कहते हैं ये पैसिव डिवाइस है। अब आप कहेंगे कि जी इसको पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क फिर क्यों कहते हैं? उसकी रीजन ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये है आपका आईएसपी। यहां से एक ऑप्टिकल फाइबर चलता है और आपके घर के आसपास कहीं आके रुक जाता है। यहां पे हम एक ऑप्टिकल स्प्लिटर रख देते हैं, लगा देते हैं, जिसका काम ये होता है उसका एक इनपुट होता है और मल्टीपल, क्योंकि लाइट है, एक एक लाइट की बीम आई, तीन उसमें डिवाइड कर दी, तीन में कर दी, आठ में कर दी, और हर एक घर को एक एक फाइबर यहाँ पे लेट करें, ये आपका घर है होम नंबर 1, ये होम नंबर 2, होम नंबर 2, ये होम नंबर 3 एंड सो ऑन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन इस तरह मल्टीपल हाउसेस को ये स्प्लिटर है, इसको किसी पावर की जरूरत नहीं है, नो पावर रिक्वायर्ड, इसलिए इसको कहते हैं दिस इज एन ऑप्टिकल नेटवर्क, दिस इज एन ऑप्टिकल नेटवर्क बट पैसिव। स्प्लिटर का नाम जैसे कि नाम से जाहिर है, स्प्लिटर का काम ये होता है कि एक सिग्नल इसको आता है और इसकी मल्टीपल पोर्ट, एक इनपुट पोर्ट होती है और मल्टीपल आउटपुट पोर्ट्स होती है। फायदा ये हुआ कि एक फाइबर से आपकी क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसका फायदा क्या हुआ, इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि एक फाइबर कंपनी ने आपके इलाके में, स्ट्रीट में पहुंचाया और आगे उसने लेट करो कि 20 घरों को कनेक्शन दे दिया, 20 घरों तक ये ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया। अदरवाइज कंपनी को अपने ऑफिस से यहां से 20 फाइबर निकालने पड़ते और आपके एक एक घर में एक एक फाइबर पहुंचाते, तो ये तो कोई मुश्किल और महंगा तरीका हो जाता। तो अब एक फाइबर वो आपके इलाके में लाती हैं और आगे उसको स्प्लिट करके बाय यूजिंग, और स्प्लिटर भी कोई पावर नहीं लेता, तो इसका मतलब इसको कोई उसकी जरूरत नहीं है। तो you can see that you are getting all of the users are getting high speed internet, लेकिन ये क्योंकि ये ऑप्टिकल है, आपके घर पे जब पहुंचता है तो you convert this optical signal। अब मुझे ये बताएं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं कि आपके आपके जो जो डिवाइसेस हैं उनको कौन सा सिग्नल चाहिए, तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रिकल। आपके लैपटॉप को कौन सा सिग्नल चाहिए? क्या आपका आपका लैपटॉप जो है उसका प्रोसेसर कोई ऑप्टिकल प्रोसेसर है, या आपकी रैम जो है कोई ऑप्टिकल रैम है? नहीं, उसको कौन सा सिग्नल चाहिए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए। तो आपके घर पे जब ये ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाता है तो यू हैव अ डिवाइस हियर व्हिच कन्वर्ट्स दिस ऑप्टिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज देन fed to your devices, whether they are laptops, whether they are smartphones, whether they are servers, workstations, desktops, whatever। कुछ बात समझ आ रही? Yes. तो in this way the user is getting high speed internet at their home, at their office, blah blah। जी जी, ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? ओके क्वेश्चन ये पूछा गया,
और एक क्वेश्चन ऑन उस पे भी आ गया, सर ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो तहरीम का क्वेश्चन और सवेरा का क्वेश्चन तकरीबन एक ही है। तो मैं इस क्वेश्चन को दो में डिवाइड कर देता हूं। ठीक, अब आपको पता है कि आपका इंटरनेट कौन सा सिग्नल, अगर ये इंटरनेट है, इंटरनेट कौन सा सिग्नल जनरेट करता है, अगर ये आपका इंटरनेट है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इंटरनेट जो है, इंटरनेट क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अगर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो इसको अगर मुझे ऑप्टिकल फाइबर पे भेजना है, ऑप्टिकल फाइबर पे भेजना है, तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करना होगा ऑप्टिकल में। इस अमल को कहते हैं ट्रांसड्यूसर, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्टर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल कन्वर्टर। तो एक्सचेंज साइड के ऊपर उन्होंने क्या लगा लिया, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्टर। मिसाल के तौर पे आपका लेज आपका आपका एलईडी क्या करता है, it take electrical and give you a light। तो ये O2E कन्वर्टर नहीं हो गया जी। सर जो सिग्नल जो उधर एलईडी में भी आते हैं थ्रू केबल, वो भी तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे ना। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई सर आफाक। आपने कहा कि सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करते, बिल्कुल ठीक है। उसको तो सिग्नल जो मिलते हैं वो तो पहले इलेक्ट्रिकल मिलते हैं, क्योंकि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलते हैं जो ऑप्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। मैंने भी ये कहा कि आपका ये मिसाल के तौर पे आईएसपी है, यहाँ पे सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम चाहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के जरिए वो आपके घर तक पहुंचे। इसका मतलब इस ग्रीन जो लाइन है, इसमें लाइट मूव करेगी। क्या मूव करेगी, तो लाइन तौर पे ये तो ई है, इलेक्ट्रिकल है। तो टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल into optical, you need light. One way is that we should use the LEDs, light emitting diodes. तो what did the light emitting diode do? It takes electrical, अगर ये LED है जिसके साथ आप खेलते रहते हैं अपने हार्डवेयर के कोर्सेज में, कि you give it a electrical signal as an input, और ये आउटपुट में आपको लाइट दे देता है, and you can then transmit this light onto the fiber. ये तो एक तरीका बताया जो कि लो स्पीड्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इंटरनेट जैसी चीज के लिए जहां पे हाई स्पीड चाहिए, वी यूज द लेजर। तो लेजर क्या करता है, ये भी इसी तरह इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है और हाई स्पीड लाइट देता है। बात समझ आ गई? तो ये तो काम हो गया एक्सचेंज साइड पे, कि यू हैव ए लेजर which convert the electrical signal into light signal and light signal is sent towards your home। हो गया बात क्लियर? ओके जी। अब हम सेकंड चीज पे बात करते हैं। इसको अगर मैं दिखाना चाहूं तो अंदर वो पड़ा हुआ है पॉइंटर, मुझे दे दो। अभी इसका छोटा सा डेमो भी दे देते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल नेटवर्क स्प्लिट हुआ है, ये फर्दर स्प्लिट कर हो सकता है? अभी बात करते हैं जी, पहले इसको देख लें दोनों एंड के ऊपर, फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं। अपने सवाल को अपने पास महफूज रखें कुछ देर के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव लेस देन अ मिनट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग चले जाएं। इसका मतलब ये है कि you will be provided the signal link again and please be connected with us। लेकिन इतने टाइम में जस्ट आपको बताना मकसद ये था कि अगर मैं अपने इस पॉइंटर को ऑन कर दूं तो शायद आपको नजर ना आए,
लेकिन आपकी स्क्रीन के ऊपर भी एक रेड डॉट मूव कर रहा है, ये क्या है? लेजर। तो इट व्हाट इट इज डूइंग, देख लो यहाँ पे आपको, आपकी स्क्रीन पे भी आपको एक नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना? तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज टेकिंग इलेक्ट्रिक, इट इज टेकिंग दी इलेक्ट्रिक, इसमें बैटरी है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकल। तो दिस इज इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्जन। ये बात क्लियर हो गई? अच्छी बात है। पहले सवाल का जवाब लेकिन 1 मिनट से कम। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह अगर मेरे सामने तमाम इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स और कंप्यूटर के लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है कि एक डायोड आपने पढ़ा था, पिन डायोड। अभी अब आप लोग सर्किट 2 पढ़ रहे हो, इसमें यू माइट बी यूजिंग द पिन डायोड। आपको अगर प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, इवन इन डीएलडी यू कैन यूज दिस पिन डायोड। ये क्या करता है, इसके ऊपर आप, पिन डायोड के ऊपर आप लाइट गिराएं, क्या गिराएं, और ये आपको लाइट, आपको लाइट, ये अगर लाइट गिराएं तो आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल दे देता है। इसकी बड़े आसान एग्जांपल, आपको मजेदार एग्जांपल दे सकता हूं कि आप लोग इसको इसको अपने प्रोजेक्ट्स में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर आपका दिल चाहे। आपने कभी देखा है कि डोर्स होते हैं, ये डोर्स हैं और ये क्लोज है, लेकिन जो ही यहाँ कोई बंदा आके खड़ा होता है या गाड़ी आके खड़ी होती है, दरवाजा खुल जाता है। तो कैसे होता है, यहां देखिए, लाइट इसके इसके ऊपर गिर रही होती है। जब लाइट यहाँ पे आ रही होती है तो द लाइट इज बीइंग इस, उसको हम एक पिन डायोड के ऊपर गिराते हैं। पिन डायोड से इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल हम से ये मैग्नेट बन जाता है, और ये दरवाजा एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। ये दरवाजा एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि आपको पता है कि व्हेन यू गिव ए इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू, पास थ्रू ए कॉइल, इट बिकम ए मैग्नेट। ऐसे ही है ना, इट बिकम अ मैग्नेट। और अगर आप उसकी करंट रोक दें तो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये जो ही इसके आगे बंदा आया, इस पिन डायोड के ऊपर करंट, इस पिन के ऊपर लाइट खत्म हो गई। लाइट खत्म हुई तो इसने करंट देना बंद कर दिया। करंट जो ही बंद हुई तो जो कॉइल थी वो डीमैग्नेटाइज हो गई, और यहाँ पे पीछे स्प्रिंग लगा हुआ है, वो स्प्रिंग इसको खींच के पीछे ले जाता है, दरवाजा खुल जाता है। जो ही वो बंदा अंदर जाता है तो लाइट दोबारा पिन डायोड पे गिरती है, दोबारा पिन डायोड में गिरती है तो दोबारा वो मैग्नेट बन जाती है कॉइल, और स्प्रिंग को खींच के दरवाजा बंद कर देती है। सो द पिन डायोड इज डूइंग दैट, इट टेक्स लाइट, जो कि हरीम का और सवेरा का क्वेश्चन है, एंड इट गिव यू electrical signal, and that electrical signal you send toward, in our case you send towards your devices, maybe your laptop, smartphone, blah blah. तो क्या आपको सवाल का जवाब मिल गया हरीम? हरीम एंड तहरीम, ये क्वेश्चन तहरीम का था। ओके, देन इज दी अगली बात करते हैं कि ये तो था पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क से आगे was available the active optical network, AON। ये कैसे काम करता है कि आपकी उसी तरह टेलीफोन एक्सचेंज से या सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस से ऑप्टिकल फाइबर के जरिए आपके घर के आसपास कहीं सिग्नल पहुंचा दिया जाता है। लेकिन यहां पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, वी आर यूजिंग एन एक्टिव डिवाइस विच इज ए ऑप्टिकल रूटर। ऑप्टिकल रूटर, जब एक्टिव कह रहे हैं तो क्या मतलब, इसको पावर की जरूरत पड़ेगी। और जब ये एक्टिव है तो ये आपकी लाइट को एम्पलीफाई कर देता है, बूस्ट कर देता है, और राउट करता है
एज ए एम्पलीफायर भी काम करता है और एज ए राउटर भी काम करता है। और फिर इसके लाजमी तौर पे जब सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, इसका मतलब है कि वो दोबारा से जवान हो गया, दोबारा से ऐसे हो गया जैसे कि यहां से जनरेट हुआ है। तो फिर ये आप लॉन्गर डिस्टेंस तक आगे जा सकता है, बेटर क्वालिटी से आपको आपके यूजर्स को दे सकता है। तो यूं आपके सर्विस प्रोवाइडर से क्वाइट मे बी अबाउट 50 किलोमीटर अपार्ट भी आपका यूजर अगर है तो कोई मसला नहीं, समझा? Yes. लेकिन यहां पे फिर आपको पैसिव डिवाइस की बजाय एक्टिव रूटर, एक्टिव ऑप्टिकल रूटर इस्तेमाल करना है। कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिक एनर्जी आप इसको देंगे। जी बिल्कुल, जो हमारी आपके घर में आसान सी एग्जांपल है कि आपकी लाइट तो चली जाती है लेकिन आपका इंटरनेट नहीं जो खत्म होता, इंटरनेट खत्म हो, इसका मतलब कि रास्ते में उन्होंने जब जहां पे भी उनको पता है कि बिजली जा सकती है तो देन दे इंस्टॉल दी बैटरीज दिया। आप देखते ना, आप भी अपने घर पे अगर बिजली चली भी जाती है तो आप एक पावर बैंक लगा के और कहते हैं नेटवर्क मौजूद है, तो इसका मतलब पीछे नेटवर्क मौजूद है। तो आपके घर के आसपास कहीं उन जहां भी बिजली चली जाती है तो वहां पे वो बैटरियों पे लोड आ जाता है। जी, एनी क्वेश्चन? आई हैव क्वेश्चन इन द चैट एंड द क्वेश्चन इज, सर एक्टिव राउटर का थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। GHR से मैं घर तक कैसे आता है? ओके, तो एक्टिव राउटर आपके घर तक नहीं आता, आपके घर तक, घर के करीब आता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन यूं कर दूं, ये आपका टेलीफोन एक्सचेंज है या सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है। यहां से इसने एक ऑप्टिकल फाइबर के जरिए किसी, मिसाल के तौर पे हयाताबाद को पहुंचा दिया। अब यहां पे इन्होंने एक अदद एक्टिव रूटर लगाया और इसको क्योंकि पावर दे दी, तो चाहे इसने एज्यूम करें कि 10 किलोमीटर का फासला भी अगर तय किया हुआ है तो यहां पे सिग्नल दोबारा रीजनरेट हो गया, इसका मतलब बिल्कुल जवान हो गया, तमाम गुना खत्म हो गए, दोबारा से यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे यहीं पे सिग्नल क्रिएट हुआ है। और फिर यहाँ पे क्योंकि राउटर रूटिंग करता है, राउटर रूटिंग करता है, तो ये इसका कुछ सिग्नल को लेट करें कि ये हैदराबाद फेज 1 है, ये फेज 2 है, ये फेज 3 है, इस तरह ये आगे, या चले हम अगर हम फेजेस नहीं कहते तो हम सेक्टर्स कह लेते हैं, ये सेक्टर कुछ भी है, सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है, सेक्टर 3 की तरफ इसने पहुंचा दिया। और यूं यहां पे फिर हम इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके लोगों के घर तक पहुंचा दिया और लोगों के घर पे उसको फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे और इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके उनके डिवाइसेस को प्रोवाइड करते। लेकिन पहला डिस्टेंस यहां पे आ गया, दूसरा डिस्टेंस यहां पे भी लेट करें 10 किलोमीटर फर्दर हमने इसको, इट कैन गो अप टू 50 किलोमीटर। राउटर को रास्ते नहीं पता चलते, राउटर को ये पता चलता है कि कौन सा सिग्नल किसको देना है। ये जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम राउटर को मिसाल के तौर पे आपके लिए मैंने नहीं लेकिन आपके सीनियर्स के लिए मैं यही काम कर रहा था। देखिए ये राउटर्स है, तो इसको पता है कि अगर एक सिग्नल यहां से स्टार्ट करना है, एक कन्वर्सेशन यहां से स्टार्ट करनी है और यहां पहुंचानी है, मिसाल के तौर पे ये आप हैं और ये एज्यूम करें नेट कैड है, तो इन राउटर को पता है कि कौन किसका सिग्नल किस तक पहुंचाना है, किस तरह, वी विल टॉक अबाउट दैट इंशाल्लाह। ठीक, ये इलेक्ट्रिकल रूटर्स हैं जैसे कि आपको यहां भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ऑप्टिकल रूटर्स भी होते हैं जिसको डिजिटल क्रॉस कनेक्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस कनेक्ट। जी टैरी, आपके सवाल का जवाब हो गया?
कैन आई मूव फर्दर? ओके, नाइस। तो आपने देखा कि ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके जरिए स्मॉल यूजर्स अपने उसके साथ कनेक्ट होते हैं, अपने यूजर जो है वो अपने आईएसपीज के साथ कनेक्ट होते हैं। जबकि जो बड़े यूजर्स हैं, इंटरप्राइज यूजर्स हैं, या तो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसे मैंने बताया SDSL, जिसको कहते हैं सिमेट्रिक DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जब क्या सिमेट्रिक, इसका मतलब है कि इसकी अपलोड और डाउनलोड इक्वल है, क्योंकि आज का यूजर, जैसे मैंने कहा, जितना वो अपलोड करता है उतना ही वो डाउनलोड भी करना और ज्यादा करना चाहता है। अपलोड भी ज्यादा, डाउनलोड भी ज्यादा। तो एज कंपेयर टू द ADSL, one of the option can be SDSL। सेकंड ऑप्शन ये है बिग इंटरप्राइजेस के पास कि वो जैसे यूटी इस्तेमाल करती है, पेशावर यूनिवर्सिटी इस्तेमाल करती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्तेमाल करती है, लीज लाइन। क्या? लीज लाइन। लीज लाइन का मतलब, जैसे लीज का आपने शायद नाम पहले भी सुना हो, जो लोग किराए पे घर लेते हैं तो वो क्या कहते हैं, मैंने ये घर लीज पे ले लिया है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। इसी तरह आप जैसे मिसाल तौर पे यूईटी, एक तरफ यूईटी है और दूसरी तरफ नया टेल है, इसके दरमियान एक ऑप्टिकल फाइबर, जो जानते हो जब लीज कर लिया, घर लीज कर लिया, तो फिर मालिक मकान भी उसमें रह नहीं सकता। इसका मतलब मालिक मकान उसको कोई भी और इस्तेमाल नहीं करेगा मां सिवाय इस शख्स के। इस तरह लीज लाइन का मतलब यह है कि ये लाइन सिर्फ यूईटी और नयाटेल आपस में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, कोई और इसको हरगिज इस्तेमाल नहीं करेगा। समझ आ गया? तो इस वक्त यूटी और नयाटेल के दरमियान ये एक लाइन 490 मेगाबिट पर सेकेंड की मौजूद है। इस लाइन को कोई और इस्तेमाल, मिसाल के तौर पे दिन को हम इसको इस्तेमाल करते होंगे, रात को तो सब स्टूडेंट घर चले जाते हैं, तो हो सकता है इसका यूज कम हो जाए, या हो सकता है स्टूडेंट हॉस्टलों में दबा के इस्तेमाल करते हो, तो डिपेंड्स। लेकिन आपकी मर्जी, यूजर की मर्जी है कि भेजे या ना भेजे, ही विल बी चार्ज्ड ऑन दिस दैट ही इज यूजिंग 490 मेगाबिट पर सेकेंड 24 आवर्स अ डे। महंगा है ना? जैसे देखे ना आप, इसकी एग्जांपल क्वेश्चन ये पूछा गया कि जी ये तो सबसे अच्छा हो गया कि जी, लेकिन जब आप कोई घर किराए पे ले लेते हो तो फिर आपको वो कहता है कि जी मिसाल के तौर पे आपका किराया 1 लाख रुपया महीना होगा, लेकिन अगर कोई आप ऐसा घर ले लो जिसमें 10 लोग रहते हो तो फिर लीज तो ना हुआ ना, फिर तो सबका क्या हो गया, शेयर्ड हो गया। तो फिर क्या होगा, अगर घर भी है, 10 लोग रह रहे हैं, तो हर एक को 10,000 रुपया पड़ेगा। ऐसा ही है ना? तो यहां पर भी ये है कि लीज लाइन बेहतर तो है, लेकिन इट इज एक्सपेंसिव, इट इज कॉस्टली। तो अगर, लेकिन इंटरप्राइजेस तो दे सकती हैं, हम एज्यूम करते हैं कि इंटरप्राइजेस तो कमाती हैं तो वो दे सकती हैं। बात समझ आ गई? इज इट क्लियर एवरीवन? तो यूं एक तरीका SDSL है, दूसरा तरीका ये है कि लीज लाइंस, तीसरा तरीका ये है कि कॉर्पोरेट इथरनेट। कॉर्पोरेट इथरनेट इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इथरनेट भी फाइबर के ऊपर चलता है। जिस तरह इथरनेट लैन में चलता है, इथरनेट लैन में चलता है, इसी तरह इथरनेट मेट्रोपॉलिटन एरियाज में भी चलता है। तो ये भी तो मेट्रोपॉलिटन है ना, आप यूटी भी पेशावर में है, नेटल भी पेशावर में है, हो सकता है इनके दरमियान में 1 किलोमीटर का फासला हो, 2 किलोमीटर का फासला हो, 5 किलोमीटर का फासला हो,
10 किलोमीटर का फासला हो, यस, इथरनेट कैन ऑल्सो प्रोवाइड। बात समझ आ गई? तो इनमें से और एक तरीका और, जो कि अगर कोई भी वायरिंग पॉसिबल नहीं है, अगर कोई भी वायरिंग पॉसिबल नहीं है, तो देन यू कैन यूज दी सैटेलाइट। और आपको पता है कि अगेन कॉर्पोरेट है, मिसाल के तौर पे आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे ना ही तो कोई किसी कंपनी ने फाइबर डाला हुआ है, या कोई कॉपर डाली हुई है, या कोई टावर खड़े किए हुए हैं मोबाइल के, नहीं, कुछ भी नहीं। आप वजिरिस्तान में हैं, आप किसी बॉर्डर पे हैं, तो इन दिस केस यू कैन यूज दी सैटेलाइट लिंक्स, यू कैन यूज दी सैटेलाइट लिंक्स। तो ये भी फोर्थ तरीका बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि उनको तो हर कीमत पे कनेक्टिविटी चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन? प्लीज लाइन भी ऑप्टिकल होती है जी, बिल्कुल। हाई स्पीड चाहिए होती है तो यू ऑलवेज गो फॉर फाइबर। जी, एनी क्वेश्चन? Think a little and let me know. Is there any question? अरे ऑल यू आर जैसे मुझे पता है कि यू आर ऑलरेडी ए ग्रेजुएट, तो आप इस पढ़ाई के अलावा करती क्या है? नहीं, दैट आई एम आस्किंग हरीम, शी इज इंजीनियर। अब सर आपने तो अभी अभी तो आप पढ़ रहे हो ना? बिट कोडर लैब में जॉब करती हूँ, ओके। कहाँ पे है बिट कोडर लैब? चलिए ठीक है, इफ यू आर ऑन जॉब इट्स गुड। सर सैटेलाइट के लिए क्या सेटअप करते हैं कि यूज करते हैं, ओके। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो हम इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और इसके लिए हम सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं, कुछ पार्ट को। जी, तो करता ये यूं टास्क है, ठीक है, ये कंप्लीटेड, ओके ओके। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि सैटेलाइट काम कैसे करता है। सैटेलाइट इस तरह काम करता है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपका दो तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ये कि जैसे मिसाल तो पीटीसीएल है, तो पीटीसीएल के दो अर्थ स्टेशन हैं, एक इस्लामाबाद में और एक कराची में। तो अगर ये अर्थ है तो मैं एज्यूम करता हूं कि ये इस्लामाबाद है और ये कराची है। और यहाँ पे जितना भी, और अगर ये इस्लामाबाद है तो लेट करें कि दुनिया का दूसरा एंड जो है वो पर्थ है, तो ये पर्थ है फॉर एग्जाम्पल, या वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड है। अब होता क्या है कि अगर हम नहीं, लेट करें कि हम एज्यूम करते हैं कि फाइबर खराब है या कुछ भी, हम सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो सारा जो आपका डेटा है वो आप एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, जिसको करते हैं अर्थ स्टेशन। और इसको आपने दुनिया के तीन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, तीन 120 डिग्रीज अपार्ट, जिसको कहते हैं ट्रांसपॉन्डर्स। क्या कहते हैं? ट्रांसपॉन्डर्स। आप सैटेलाइट भी कह सकते हैं कि तीन सैटेलाइट्स आपने, सैटेलाइट नंबर 1, सैटेलाइट नंबर 2, सैटेलाइट नंबर 3
120 डिग्री ये पार्ट आपने छोड़े हुए हैं, और जमीन और इनके दरमियान तकरीबन 35,900 किलोमीटर का, रफली 36,000 किलोमीटर का फासला है। अब इसको जियो स्टेशनरी इसलिए कहते हैं, जियो स्टेशनरी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जमीन भी रिवॉल्व कर रही है, तो उसी स्पीड से ये सैटेलाइट भी मूव करता है, रिवॉल्व करता है। तो जमीन को ऐसा लगता है कि ये उसके साथ बिल्कुल क्या है, स्टेशनरी है। अब दो कि जमीन भी मूव कर रही है, ना जमीन स्टेशनरी है और ना सैटेलाइट स्टेशनरी। अब होता यह है कि जब इस्लामाबाद को अपना डेटा भेजना है, तो मैं कलर चेंज कर रहा हूं, वो इसको एक खास फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेट करके इसकी तरफ वायरलेस सिग्नल थ्रो करता है, जो कि 6 गीगाहर्ट्ज पे का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करता है। कितना? 6 गीगाहर्ट्ज। जब ये सिग्नल इस ट्रांसपॉन्डर पे पहुंचता है, सबसे पहले तो ये इसको रिसीव करता है, यानी एंटेना होगा। फिर उसको, क्योंकि वो कमजोर हो गया है, 36,000 किलोमीटर उसने फासला तय किया है, उसको एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करता है। फिर उसको फिर उसको 4 गीगाहर्ट्ज पे ट्रांसपॉन्ड करता है, चेंज करता है, और एक डिफरेंट कलर मैं इस्तेमाल करता हूं। लेट कर कराची से इसने बात करनी है, कराची की तरफ इसको नंबर 4 ट्रांसमिट करता है, जिधर उसको कहा गया है उधर, चाहे वो कराची है, चाहे वो काबल है, चाहे वो कोई भी जगह है, तो उसकी तरफ उसको थ्रो कर देता है। यहां पे वो सिग्नल रिसीव हो गया कराची में मिसाल के तौर पे, और वो फिर आप इसको अपने मुताबिक दोबारा 4 गीगाहर्ट्ज से लोअर फ्रिक्वेंसी पे लाते हैं, और अपने जहां जहां आपके लैंडलाइन कनेक्शंस हैं उनकी तरफ भेज देते। क्लियर हो गया? जी तहरीम जी। सर ये जो सैटेलाइट है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम है। जी बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन ये पूछा गया कि ट्रांसपॉन्डर जो है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम करता है, बिल्कुल जी। वो यहां से पहले रिसीव करता है और फिर ट्रांसमिट करता है, इसलिए मैंने दो डिफरेंट कलर्स ग्रीन और येलो इस्तेमाल किए। और सर इसके लिए डेटा जो हो गई वो पहले अर्थ स्टेशन पे इकट्ठा होगा फिर भी जी बिल्कुल, पहले अर्थ स्टेशन पे आएगा और फिर वो ट्रांसपॉन्डर की तरफ थ्रो किया जाएगा, ये ट्रांसमिट किया है, थ्रो तो नहीं कहूंगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। और सर इसकी स्पीड कंपेयर टू लीज लाइन कम होती है, इसलिए एक वक्त था जब आपके पेरेंट्स जवान थे, यानी जब वो हमारी तरह हमारे उसमें, तो हमारे जो मैचेस वगैरह होते थे ना, हॉकी के मैच या कुछ, तो वो सैटेलाइट के जरिए होते थे। तो बड़ा उसका वो, जो आजकल तो ऑप्टिकल फाइबर है इसलिए कोई मसला नहीं होता, लेकिन उस वक्त पहले सैटेलाइट मिल रहा होता था, वो टीवी पहले 5-10 मिनट से पहले से इस प्रोसेस में लग जाता था, और बाजू का यूं ही मैच चल रहा होता था, दरमियान में कहते थे जी सैटेलाइट से हमारा राब्ता मुनकता हो गया है, और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा हम उसको लगाएं, तो इट वाज समथिंग डिफरेंट। डिश नहीं, आपके घर पे डिश नहीं होता था, आपके आपका जैसे मैंने कहा कि पूरे पाकलेट करे पिशावर है, तो पूरे पिशावर में आपको उनको डिशेस नहीं देते थे, वो बाय आपने वायरलेस के जरिए आपके लेट करें पिशावर में आपके कैंट में स्टेशन है, वहां पे पहुंचता था, वहां से वो इकट्ठा करके भेजते थे टुवर्ड दी सैटेलाइट, एंड सैटेलाइट से फिर वो लेट करें शारजा में दूसरा एंड है, तो वो सिग्नल गिराया जाता था शारजा में, शारजा में फिर उसको रिसीव किया जाता था, फिर उसको फिक्स उसको प्रोसेस किया जाता था, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। जी, एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? अबूजर, हरीम, तहरीम? सर ये ट्रांसपॉन्डर सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड किस तरह होते हैं? The question has been asked by Tehreem. Am I right?
किसका क्वेश्चन था, किसने पूछा? इधर तहरीम आ रही, बट आई डोंट नो हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तहरीम। तो तहरीम ने क्वेश्चन ये पूछा, वो समझ रही कि ट्रांसपॉन्डर और सैटेलाइट दो अलग चीजें हैं। मैंने कहा कि आम लोग इसको सैटेलाइट कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये सैटेलाइट ही आपका कहलाता है ट्रांसपॉन्डर। तो ये एक ही चीज है, ये दो चीजें नहीं। बात समझ आ गई तहरीम? ओके। तो ये हो गया आपके मुख्तलिफ तरीके जिससे आप इंटरनेट कनेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो यही कुछ अगली स्लाइड्स में बताया गया कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप ये जूम करें कि ये आईएसपी है और ये मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो देखिए इसने यही लिखा है कि जी पॉपुलर डिवाइसेस फॉर होम यूजर्स, स्मॉल ऑफिसेस, क्या है? इधर यू कैन यूज द ब्रॉडबैंड केबल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस। इसके अलावा एक मैंने मिस किया, वो भी क्लियर कर देता हूं। ऑर्डिनरी यूजर तो मोबाइल डेटा भी इस्तेमाल करता है, तो इसलिए यहां पे लिखा है मोबाइल सर्विस। तो मैंने इसे काफी ज्यादा आपको एक्सप्लेन किया। फिर कहता है ऑर्गेनाइजेशन नीड फास्टर कनेक्शंस टू सपोर्ट आईपी फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डेटा स्टोरेज। इसलिए हमने पूरा सफर पढ़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम दी मोडेम एंड गोइंग टुवर्ड्स दी फास्ट ऑप्टिकल फाइबर। तो वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में को फास्टनेस चाहिए, क्योंकि उसने उसमें वीडियो चलानी है, ऑडियो चलानी है, स्ट्रीमिंग करनी है, बिजनेस चलाने हैं, एजुकेशन चलानी है। तो यही वो कह रहा है, बिजनेस क्लास इंटरकनेक्शंस आर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर्स दैट मे इंक्लूड्स बिजनेस डीएसएल्स, जिसको एसडीएसएल कहते हैं, लीज लाइन, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कॉर्पोरेट इथरनेट जिसको मीट्रो इथरनेट भी कहते हैं। तहरीम का क्वेश्चन ये है कि क्या मोबाइल डेटा हम सैटेलाइट के जरिए लेते हैं? आंसर इज नो। तहरीम का, अच्छी बात है तहरीम क्वेश्चंस पूछती है। तहरीम का क्वेश्चन ये है कि क्या हम मोबाइल डेटा हम सैटेलाइट के जरिए लेते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं, बल्कि मोबाइल डेटा आप ऐसे लेते हो कि लेट करेंगे आपकी मोबाइल फोन है, मोबाइल स्टेशन जिसे कह लेता हूं, एमएस है। इस मोबाइल स्टेशन पे आपने डेटा एक्टिवेट किया, तो आप अपने आसपास कहीं मोबाइल टावर खड़ा है जिसको साथ एक डिवाइस यहाँ पे बॉक्स है जिसको बीटीएस कहते हैं, इस तक आप वायरलेस हैं। इसके आगे, बीटीएस के आगे, आप वायर के जरिए कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है जिसको बेस स्टेशन कंट्रोलर कहते हैं। और इस बेस स्टेशन कंट्रोलर जो है फिर वायर के जरिए, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए आप उसके स्विचिंग सेंटर से कनेक्टेड है। और ये स्विचिंग सेंटर जो मोबाइल का है, ये आपके पीएसटीएन के साथ, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, जहां पे तमाम आईएसपीज मौजूद है। तो यहां किसी सैटेलाइट की जरूरत नहीं। जी तहरीम, तो यहां पे किसी उसकी जरूरत नहीं। ओके नाइस। तो जो बातें मैंने पिछले क्लास में भी और आज की क्लास में भी क्वाइट डिटेल में बताई, इस खुदा के बंदे ने 3 पैराग्राफ्स में या 3 डॉट्स में कह दी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा समझ आया होगा। अब हम देखते हैं जी, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि जी एक तरफ और होम यूजर्स हैं और एक तरफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी है। तो क्या क्या हो सकता है? अभी मैंने आपको बताया डीएसएल भी हो सकता है, देखिए डीएसएल भी हो सकता है, केबल ऑपरेटर भी हो सकता है, मोबाइल डेटा भी हो सकता है,
डायल अप मोडेम भी हो सकता है, डायल अप मोडेम भी हो सकता है, सैटेलाइट भी हो सकता है। तो एनी वन ऑफ ऑल्दो सैटेलाइट, ऑर्डिनरी यूजर, होम यूजर जो मालदार है, शायद आई मे से यस, जैसे मिसाल तो पाकिस्तान में थुराया है, दैट इज वन ऑफ द कंपनी, शायद नाम भी आपने ना सुना हो, क्योंकि इट इज सो एक्सपेंसिव कि ऑर्डिनरी यूजर इसको बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये तमाम मेथड्स, चाहे केबल हो, डीएसएल हो, सेलुलर हो, सैटेलाइट हो, डायल अप मोडेम हो, इसके जरिए एक आम या होम यूजर या स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस अपने सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हो सकता है। और ये जो दरमियान में आपको नजर आ रहा है, ये ट्रांसपॉन्डर है, जिसको आप सैटेलाइट कह रहे हैं, कोई गलत नहीं है। फिर कहता है कि अगर बिग बिग बिजनेसेस हैं, कमाने वाले लोग हैं, तो कमाने वाले लोगों को हाई बैंडविड्थ चाहिए, उनको कनेक्शन में किसी किस्म का किसी के साथ शेयर करना वो नहीं चाहते, डेडिकेटेड कनेक्शन उनको चाहिए, और उनको क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए। क्या चाहिए? क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए। उनको क्वालिटी ऑफ, जिसको हम कह सकते हैं मैनेज्ड सर्विसेज चाहिए। उनको क्या चाहिए? क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब जो उनसे वादा किया गया है उस वादे में पूरा उतरना है कंपनी ने। मिसाल के तौर पे अगर कहा गया कि तुम्हें 1 गीग मिलेगा तो तुम्हें 1 गीग मिलेगा। ये नहीं कि कभी तुम्हें 200 मेगा मिल जाए और कभी तुम्हें 500 मेगा मिल जाए, नहीं। मैनेज सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ये तीनों डिमांड्स किसकी हैं? बिजनेसेस की हैं, इंटरप्राइजेस की हैं। ठीक है ना? ओके। इसके लिए कौन सा? देखिए मैंने बताया पहला तरीका क्या है कि लीज लाइन लो। दूसरा तरीका मैंने कहा कि एसडीएसएल इस्तेमाल करो, सिमेट्रिक डीएसएल इस्तेमाल करो, बिजनेस डीएसएल इस्तेमाल करो, सैटेलाइट इस्तेमाल करो, मेट्रो इथरनेट इस्तेमाल करो, कॉर्पोरेट इथरनेट। यानी कि इथरनेट टेक्नोलॉजी को ही आप, या तो आप जैसे अभी आप यहां पे करते हो कि आप एक स्विच लेते हो और इसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस अपने कनेक्ट, इसको कहते हैं इथरनेट लैन। क्या कहते हैं? इथरनेट लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर आप ये इथरनेट टेक्नोलॉजी मेट्रोपॉलिटन एरिया में इस्तेमाल करें, मैन में इस्तेमाल करें, तो फिर आप इसको कहेंगे मीट्रो इथरनेट या कॉर्पोरेट इथरनेट। तो अगेन कॉर्पोरेट इथरनेट या इथरनेट वैन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिटवीन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूर आईएएस। बात समझ आ रही? गुड। फिर हमने बात की कि जी अगला टॉपिक कह लें, दैट इज द कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब ये है, इसी इंटरनेट कनेक्शन के अंदर हम पढ़ रहे हैं, कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि पास्ट में और इवन आज भी कई टेक्नोलॉजीज हैं जो किसी सिर्फ एक पर्पज के लिए काम करती हैं। मिसाल के तौर पे आज भी पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, क्या क्या काम है? हेलो करवाना, वॉइस भेजवाना। आज भी आपके केबल नेटवर्क का क्या काम है? आज भी आपकी केबल नेटवर्क का क्या काम है? वीडियो भिजवाना। आज भी अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो एक नेटवर्क था पेजर, जिसका काम सिर्फ ये था कि वो टेक्स्ट भिजवाता था, टेक्स्ट बस, ना ऑडियो ना वीडियो ना कुछ। यानी कि हर एक टेक्नोलॉजी किसी खास पर्पस के लिए काम करती है या बनती है। लेकिन हमारा इंटरनेट माशाल्लाह मल्टीमीडिया लेकर चलता है। यानी कि वॉइस भी, ऑडियो भी, वीडियो भी, वीडियो डिमांड पे भी हो सकती है, वीडियो स्ट्रीमिंग भी हो सकती है, पिक्चर्स, डेटा,
जो आप भेजना चाहते हो ये सब कुछ ले जाने की काबिलियत रखता है। इसलिए इसको कहते हैं, ये कौन सा नेटवर्क है? कन्वर्जिंग नेटवर्क है। तो जैसे देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि एक डिवाइस है, ये कनेक्ट है किसी अब कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए, अपने मैसेज भेज रहा है। जो कोई टेलीफोन है यानी वॉइस भेज रही है, डेटा भेज रही है, यहाँ से हो सकता है वीडियो भेजा जा रहा है। ऑल इज बीइंग, इनिशियली क्या था, हर कोई अलग अलग। देखें आपने अगर इवन हमारा जो इंटरनेट भी इनिशियल स्टार्ट हुआ था, दैट वाज ओनली फॉर डेटा, दैट वाज ओनली फॉर डेटा। तो मल्टीमीडिया कैसे बना, दैट इज द क्वेश्चन। कि हमने इस पिछले 20-25 साल में ऐसे काम किए कि हमारा यही कंप्यूटर नेटवर्क अब वॉइस डेटा भी ले जाता है, हमारा वॉइस भी ले जाता है, हमारा मल्टीमीडिया भी ले जाता है। लेकिन पहले इन सब के लिए अलग अलग, देखें वॉइस के लिए कौन सा नेटवर्क चाहिए था? टेलीफोन नेटवर्क। डेटा के लिए कंप्यूटर नेटवर्क। इसके लिए वीडियो वगैरह के लिए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स। लेकिन अब क्या है, अब क्या सिनेरियो है, सब एक ही के ऊपर, एक ही नेटवर्क के ऊपर डेटा भी आ रहा है, वॉइस भी आ रही है, मल्टीमीडिया भी आ रहा है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स भी आ रहे हैं। तो दिस इज दी, यानी कि दैट इज द कन्वर्जेंस ऑफ डेटा, वॉइस एंड वीडियो ऑन ए सिंगल नेटवर्क। सो दिस हैज क्रिएटेड, दिस इज अ चैलेंज। और जब भी चैलेंज होता है, अगर आप उससे, आपको पता है कि जब भी आप चैलेंजिंग किसी चीज को लेते हैं तो यू ऑलवेज विन। तो हमारे लिए भी ये एक चैलेंज है कि भाई, क्योंकि इन सब, क्यों ये चैलेंज है? क्योंकि हर एक की डिमांड मुख्तलिफ है, हर एक की रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ है। नेटवर्क बस्कीन नेटवर्क एक है, लेकिन इनकी हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इसको मैनेज करना इज ए चैलेंजिंग टास्क विच द पीपल लाइक यू हैव टू अकम्प्लिश। क्यों आफाक? Yes. ठीक है। तो इसके बाद देर इज जस्ट ए वीडियो जो कि आपने खुद देखनी है, एंड वी विल बी फ्रॉम द टुमारो इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग विद दी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत इंजॉयबल होगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ नई चीजें सीखी। कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे विद दी रिलायबल नेटवर्क्स, और कोशिश करेंगे कि इस वीक में ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाए। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अबू जर, हरीम, तहरीम, is there any question? Clear? Okay, if it's clear, so we stop here. Inshallah, see you tomorrow. Till then, Allah Hafiz. Good, Harim. Inshallah, see you tomorrow as well.